Welcome to the students. This is the lecture number 4 and today we will discuss in this lecture that is the broad crested bear, right? So what is broad crested bear? First we will try to understand. तो broad crested bear क्या है? Which is having a wide crust, you understand, as compared to the narrow crested bear or thin plate crested bear. इसका जो crust होगा that is white, right? So it is having a white crust. ये तो एक first इसका difference हुआ. And the second one is that it differs in the flow pattern, you understand. It differs in the flow pattern, or you can say you will get the different type of the flow pattern in case of the broad crested bear. If we will compare, अगर हम thin plate crested bear का flow pattern देखें या narrow crested bear का flow pattern देखें, तो जो wide crested broad crested bear होगा, its flow pattern is different from that narrow crested bear or thin plate crested bear, right? So this is that you can say broad crested bear क्या है? It is having a wide crust. इसका जो crust होगा that is white. And if we will differentiate, if we want to differentiate this bear with a thin plate crested bear or narrow crested bear, so you can say it is having the different flow pattern. तो इसको हम differentiate करने के लिए first हम देखते हैं कि जो आपका thin plate crested bear है, what is the ये आपका thin plate crested bear, thin plate crested bear, right? So if we want to differentiate this, जो आपका thin plate crested bear, you can say thin plate crested bear, thin plate bear or thin plate bear लिख लीजिए, thin plate bear. So thin plate bear, तो इसमें जो आपका width होगा, so you can say that the width of the bear. So इसमें आपका जो width आपका bear होगा, width देखिए यहाँ से width of the bear, thin plate bear की बात करें तो width of the bear, this is you can say less than 0.625 h. इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0.625 h के लेस होगी. एंड द रेशो, अगर हम रेशो की बात करें h upon B ratio, this is greater than 1.6. You understand? H upon B ratio, this is equal to 1.6. So you can say this type of the bear, this is known as thin plate bear. तो because I am just giving you the difference, ये तीनों चीज़ों में इसका difference होगा. इसका width जो आपकी ब्रॉड क्रेस्टेड बेयर है, तो जैसे आपको मैंने बताया कि ब्रॉड क्रेस्टेड बेयर का जो विड्थ होगा वो क्या होगा? वाइड होगा, ज़्यादा होगा. सो इफ वी गो ऑन कंपेयरिंग द थिंग्स, तो ये कंपैरिजन का फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया था कि अगर थिन प्लेट बेयर हम लेते हैं, राइट, थिन प्लेट बेयर, सो थिन प्लेट जो आपकी बेयर होगी, थिन प्लेट लीजिए मैंने, थिन प्लेट बेयर, तो इसमें इफ यू विल you can say find that width of the bear, you can say the width of the bear, this is less than 0.625 h. And what is h? H, that is the head of the bear. और h upon b की जो रेशो है that is greater than 1.6. और इसका जो फ्लो पैटर्न होगा, जो इसका फ्लो पैटर्न है कि ये फ्लो कैसे करेगा, फ्लो पैटर्न इसका जो कैसे होगा, इन केस ऑफ द थिन प्लेट बेयर, the water flows from the upstream side, right, जहाँ से the water will flow, और जो upstream के ऊपर जो इसका edge होगा, it will touches the
edge of the upstream and then clearly flow towards the downward, you can say downward end, right? जहां से फ्लो पैटर्न इसका क्या होगा कि इस तरीके से अपस्ट्रीम से पानी आएगा एंड इट विल टच टू दिस एज ऑफ द वेयर, अपस्ट्रीम एज से ये टच करेगा एंड देन इट विल फ्लो क्लियरली टूवर्ड द डाउनवर्ड एंड, राइट, यू कैन से। तो फ्लो पैटर्न अगर आपने लिखना है तो फ्लो पैटर्न लिख लें। तो यू कैन से जेट ऑफ द वाटर, ये क्या करेगा, जेट ऑफ वाटर टचेस, इस केस में जेट ऑफ द वाटर टचेस द अपस्ट्रीम एज एंड देन clearly flow towards downward end, और ये क्लियरली फ्लो करेगा आपका जो डाउनवर्ड एंड होगा उसकी तरफ। डाउनवर्ड एज लिख लीजिए, इट क्लियरली फ्लोज टूवर्ड्स डाउनवर्ड एज। तो ये आपका हो गया इन केस ऑफ द फ्लो पैटर्न ऑफ दिस। तो इसका फ्लो पैटर्न आपको लगा, पता चल गया। इसमें क्या है, विड्थ ऑफ द वेयर दिस इज लेस देन 0.625 एच, जो रेशो है एच अपॉन बी की, एच क्या है, हेड ऑफ द वेयर एंड बी इज द विड्थ ऑफ द वेयर, दैट रेशो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.6। और जो फ्लो पैटर्न इसमें क्या है कि पानी जो अपस्ट्रीम एज से आएगा इसमें, तो अपस्ट्रीम से पानी आके इट विल टच द अपस्ट्रीम एज ऑफ द वेयर एंड देन इट विल फ्लो क्लियर टुवर्ड्स द डाउनवर्ड एज, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ गया थिन प्लेट की वेयर के बारे में। अभी इसका आप नैरो क्रेस्टेड वेयर के बारे में देखें। तो नैरो क्रेस्टेड वेयर, नैरो, जब तक हम ये इनके बारे में हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट दैट, जब तक हम इनके बारे में कि थिन प्लेट वेयर क्या है, इसका विड्थ कितना होता है, इसका रेशो क्या है, इसमें जो वाटर का फ्लो है किस तरीके से होगा, इसी तरीके से नैरो क्रेस्टेड वेयर के बारे में भी हम जानेंगे ये तीनों फैक्टर्स, पैरामीटर्स कैसे होंगे एंड देन वी विल कम टू द ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर, यू अंडरस्टैंड। सो नैरो क्रेस्टेड वेयर, so narrow crested weir yes, so first of all we will just consider the width. So width of narrow crested weir, अगर मैं विड्थ की बात करूं तो कितना होगा, बी इसका जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2.5 एच, सॉरी बी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.625 एच टू less than or equal to 2.5 एच, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें देखिए विड्थ ऑफ द नैरो क्रेस्टेड वेयर ये आपकी 0.625 एच से ज़्यादा होनी चाहिए, या इसके बराबर हो, और इट इज़ लेस देन 2.5 एच, या उसके बराबर हो, यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ द रेंज यू कैन से। So this is the width and you have seen that there is the difference of the width here. जो पहले केस में मैंने थिन प्लेट वेयर के बारे में था उसमें width कितना था, that is less than or equal to 0.625 एच, you understand। तो जहाँ पे जो width है that should be
greater than or equal to 0.625H to less than or equal to 2.5H. That is the range you can say. So range आपका विड्थ ऑफ द नैरो क्रेस्टेड वियर ये होगा, और इसमें जो रेशो होगी सेकेंड H/B रेशो. व्हाट इज H/B रेशो? सो सेकेंड इसमें जो H/B जो रेशो होगी दैट शुड बी greater than that should be less than 1.6, right? So H/B ratio that should be less than 1.6. तो इस किस्म की जो वेयर होगी दैट वेयर इज कॉल्ड द नैरो क्रेस्टेड वेयर. अब इसमें हम फ्लो पैटर्न की बात करें. सो थर्ड, सो इसमें जो फ्लो पैटर्न क्या होगा, द वाटर flows over the whole surface of the wear crust. इसमें पानी जो है वियर के पूरे सरफेस के ऊपर जो है क्या करेगा, फ्लो करेगा. यू अंडरस्टैंड? सो इन दिस केस वाटर फ्लोज ओवर इट, द जेट ऑफ वाटर. तो इस केस में इसमें लिखना है तो लिख लीजिए the jet of water remain in contact the jet of water remain in contact with the surface of wear crust. You understand? The water will flow. पानी इसके ऊपर से किस तरीके से फ्लो करेगा कि जो पानी का जो जेट होगा बियर का जितना भी जो क्रेस्ट का सरफेस होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर दैट विल रिमेन इन कांटेक्ट विद दैट. पहले केस में क्या था कि पानी जो है वियर के इस एज के ऊपर क्या करेगा, अपस्ट्रीम एज को टच करेगा और उसके बाद क्लियरली फ्लो करेगा डाउनवर्ड एंड की तरफ. बट इन दिस केस द वाटर क्लियरली फ्लोज ओवर द surface of the wear crust, or you can say the jet of the water that will remain in contact with the surface of the wear crust. तो ये तो हो गया आपका नैरो क्रेस्टेड वियर के बारे में. पहले मैंने आपको बताया थिन प्लेट crested wear. Now this is the narrow crested wear. Now come to this broad crested wear. अब हम broad crested wear के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये दो चीजें मैंने इसलिए बताई थी कि there is the difference in that. width की बात करें that is different, ratio H/B ratio that is different, और जो jet of the water इसके ऊपर जो flow करेगा चाहे वो थिन क्रेस्टेड वियर थिन प्लेट वियर है या नैरो क्रेस्टेड वियर है या ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है, तो इन तीनों के ऊपर जो फ्लो पैटर्न होगा वो पानी का दैट इज डिफरेंट. वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. नो वी विल कम टू द ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, राइट. सो लेट अस डिस्कस द ब्रॉड क्रेस्टेड वियर. अब हम ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो let us discuss broad crested wear. So first of all we will discuss about its width. So width of the broad crested wear. तो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, दैट इज जो W है या B लिख लो W लिख लो, दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.5H टू लेस देन आर इक्वल टू 10H. तो जहां से ही देख लीजिए
कि इसका जो विड्थ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर में क्या होगा, जो क्रेस्ट का विड्थ होगा वो बड़ा वाइड होगा. सो इफ यू विल कंपेयर दिस, इफ यू विल कंपेयर द विड्थ विद द narrow crested weir or the thin plate weir, you will see that the width of this is large, very large as compared to the thin plate weir or the narrow crested weir. You understand? So B that is greater than 2.5H to this one, right? Less than or equal to, इसके बीच में इसका रेंज होना चाहिए, जो इसका रेंज होगा वो इसके बीच में होगा. तो इसको अगर हम लेंथ ऑफ द क्रस्ट के हिसाब से, इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस, इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट द लेंथ ऑफ द क्रस्ट, तो अगर L इज द लेंथ ऑफ द क्रस्ट तो मैं ये कभी कह सकता हूँ 2L ग्रेटर देन H, राइट. 2L ग्रेटर देन H. 2L कम का मतलब L इज द, L क्या है जहाँ पे, L इज द लेंथ ऑफ द क्रस्ट, लेंथ ऑफ द क्रस्ट, एंड H इज द हेड. यू अंडरस्टैंड? J हो गया इसका विड्थ के बारे में. नाउ वी विल कम टू इट्स फ्लो पैटर्न. जो इसका फ्लो पैटर्न होगा, नाउ दिस इज द फिगर, दिस इज द डायग्राम विच आई हैव मेड द ब्रॉड क्रस्टेड वेयर. जहां से देखिए आप फ्लो पैटर्न इसका किस तरीके से है, जहां से देखिए ये अपस्ट्रीम एज है, तो अपस्ट्रीम एज के ऊपर इसी तरीके से जहां तक इसका, उसके बाद फ्लो हेड इतना है H के बराबर, और उसके बाद देखिए देयर इज ए ड्रॉप इन प्रेशर और ड्रॉप इन सरफेस. क्या होगा जब ये इसके ऊपर से जो क्रेस्ट ऑफ द वेयर है उसके ऊपर से जब ये फ्लो करेगा, सो देयर इज ए ड्रॉप इन प्रेशर, देयर इज ए ड्रॉप इन प्रेशर, और देयर इज ए, यू कैन से देयर इज ए वाटर सरफेस के ऊपर क्या हो, वाटर सरफेस का क्या होगा, ड्रॉप, वाटर सरफेस विल ड्रॉप हियर. तो जहां से वाटर सरफेस ड्रॉप करेगा और उसके बाद ये चला जाएगा. यू अंडरस्टैंड? तो ये दिस इज द, जहां पे आप कहते हैं वाटर फ्लोज ओवर इट, देयर अकर्स ए ड्रॉप इन द वाटर सरफेस. तो इसके ऊपर जो पानी फ्लो करेगा तो उसको लिख लेते हैं वाटर फ्लोज ओवर इट, ओवर इट. इट का क्या मतलब, वाटर फ्लोज ओवर द वेयर क्रस्ट, राइट. वाटर फ्लोज ओवर इट एंड देयर अकर्स द ड्रॉप इन वाटर सरफेस, there occur drop in water surface over the weir, over the crust of the weir. There occur a drop in water surface over the crust of weir. तो जी आपने देख लिया कि दिस इज द डिफरेंस, यू कैन से, इन द थिन प्लेट वेयर, नैरो क्रेस्टेड वेयर एंड ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर. इन तीनों का जो फ्लो पैटर्न था वो डिफरेंट टाइप का था. यू अंडरस्टैंड? जो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर के बारे में, दोनों को तो पीछे में डिस्कस कर दिया आपको. ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर के बारे में जहां पे देखिए, एज पर द डायग्राम यू कैन सी दैट देयर अकर द ड्रॉप इन वाटर सरफेस. जहां पे जो पानी था इसका, यू कैन से, हेड इतना है, राइट. इसका हेड इतना है, उसके बाद या कर्वेचर से ये जहां से कर्वेचर बनेगा, और इसके ऊपर जो विड्थ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वेयर है उसके ऊपर आप देखिएगा कि पानी का जो लेवल है वो क्या करेगा, जहां से जहां पे ड्रॉप करेगा. यू अंडरस्टैंड? इसका फ्लो पैटर्न इस तरीके से बनेगा. अगर इस पॉइंट के ऊपर, अपस्ट्रीम एज के ऊपर हम देखें, if our total head is equal to H, so you will see here at the middle of the crust, अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूं क्रस्ट के ऊपर, सो एट द मिडल ऑफ द क्रस्ट इसका जो हेड है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल h, बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन द हेड हियर. पानी का जो सरफेस है दैट विल ड्रॉप हियर,
You understand this? So there is a drop in water surface. तो definitely जब water surface में drop होगा तो there is a, you can say there is a change in the head also. Head भी आपका क्या होगा, change होगा. And if there is head A, जहाँ पे H जहाँ पे है तो जहाँ पे जो head है इसका small h होगा. You understand? So this is the difference, and this you can say broad crested weir के बारे में कि what is the broad crested weir? Broad crested weir, it is having a wide width of the weir. जो वाइड विड्थ होगी, इसमें जो विड्थ जो होगी वो क्या होगी, वाइड होगी. इट इज हैविंग ए वाइड क्रस्ट. इसका जो क्रस्ट होगा वो क्या होगा, वाइड होगा, उसकी विड्थ ज्यादा होगी. इट इज हैविंग ए वाइड क्रस्ट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि इफ आई विल टेक दैट विड्थ ऑफ दिस, सो विड्थ जो इसका होगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 h, टू लेस देन और इक्वल टू 10 h. एंड जो फ्लो पैटर्न था, तो फ्लो पैटर्न इट इज हैविंग द डिफरेंट फ्लो पैटर्न एज कंपेयर टू द थिन प्लेट वियर और नैरो क्रेस्टेड वियर. एंड इस जो इसका फ्लो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, जब अपस्ट्रीम से, ये आपका अपस्ट्रीम है, ये आपका डाउनस्ट्रीम है, राइट. सो अपस्ट्रीम एंड के ऊपर ये आपका वियर है, तो पानी जहां से कलेक्ट होके जहां तक इसका लेवल पहुंचेगा, उसके बाद दैट वाटर विल फ्लो ओवर इट, राइट. तो जब जहां से पानी फ्लो करेगा तो जहां से ये कर्वेचर से इसका जो वाटर सरफेस है, ये कर्वेचर बनेगा जहां पे, और जो वाटर सरफेस है जहां पे डाउन करेगा, देयर इज ए ड्रॉप इन द वाटर सरफेस ओवर द crest of the weir. There is a drop of the water surface over the crest of the weir. You understand? तो crest of the weir के ऊपर क्या होगा, वाटर सरफेस इसका डाउन बढ़ेगा और इस तरीके से इसका फ्लो पैटर्न बनेगा. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये तो हो गया एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, राइट. ये आपका दो टाइप का होगा. So it is you can say broad crested weir. These are so there are two types. अब इसकी टाइप्स के बारे में हम जानेंगे. एक टाइप है शार्प कॉर्नर एट द अपस्ट्रीम एंड, राइट. विद ए शार्प कॉर्नर एट द अपस्ट्रीम एंड. तो पहली टाइप आप कह सकते हैं वो क्या है, फर्स्ट टाइप है विद ए शार्प corner at the upstream and this is the first type, and second one with a round corner at the upstream end. So these are the two types with a sharp corner at the upstream end. There are, देखिए अब इसको देखिए, these are the two figures here. I have just drawn the two figure. ये आपका शार्प कॉर्नर है जहां पे, दिस इज द शार्प कॉर्नर यू हैव सीन हियर, एंड दिस इज हैविंग द राउंड कॉर्नर. यू अंडरस्टैंड? अब जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. ये शार्प कॉर्नर जो वियर है, जब राउंड कॉर्नर जो वियर है, इसका यू कैन से दैट इसका डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम सिग्निफिकेंस आल्सो. जहां पे अगर शार्प कॉर्नर दिया है तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस होगा, राउंड कॉर्नर उसका भी सिग्निफिकेंस होगा. और यू कैन से दैट विच वियर इज मोस्ट यू कैन से बेटर, वेदर इट इज अ शार्प कॉर्नर वियर और द राउंड कॉर्नर वियर. तो
that I have shown the two diagrams here. तो one by one we will discuss. पहले मैं लेता हूँ ये sharp corner upstream end, right? जहाँ से पहले आप समझिए, just understand. देखिए ये sharp corner आपका upstream end है, जहाँ से आपका वाटर फ्लो कर रहा है अपस्ट्रीम एंड से। आप जब देखिए, यू अंडरस्टैंड, द वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, बी ए, दिस इज अप्रोच वेलोसिटी, राइट? ये क्या है? अप्रोच वेलोसिटी है, अप्रोच वेलोसिटी। तो पानी जो है वो इस तरीके से इसके साथ, और जहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप इन प्रेशर होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यू अंडरस्टैंड। अब जब ये लोअर नैपी की बात करें, ये सारे का सारा क्या है, यू कैन से दिस इज अ नैपी, राइट? जो पानी की थिन मेटल ऑफ थिन वाटर ऑफ शीट है, उसको हम क्या बोलते हैं? नैप बोलते हैं। तो जो लोअर नैप होगा, जब ये जहां से फ्लो करेगा, यू अंडरस्टैंड, सो देयर इज अ राउंड कॉर्नर, सो देयर इज अ शार्प कॉर्नर हियर एट द अपस्ट्रीम एंड. So what happens? Lower nap that is slightly raised, that is slightly raised at the upstream end. लोअर कॉर्नर जो उसका लोअर पार्ट ऑफ द नैप होगा, दैट इज स्लाइटली रेज्ड एट द अपस्ट्रीम एंड. ये आपका अपस्ट्रीम कॉर्नर है, एंड है, एज है, जहां पे क्या होगा, दैट विल स्लाइटली रेज. यू अंडरस्टैंड? जिस तरीके से रेज करेगा, सो देन व्हाट हैपन्स, द एयर पॉकेट विल डेवलप हियर. यू अंडरस्टैंड? एयर पॉकेट जो है वो क्या होगा, जब पानी फ्लो करके इस तरीके से आ रहा है, इसको अंडरस्टैंड करें. जब पानी फ्लो करके इस तरीके से आ रहा है, ये आपका शार्प कॉर्नर है, जहां पे अपस्ट्रीम जो आपका एंड है, उसके ऊपर ये आपका अपस्ट्रीम एंड है, ये आपका डाउनस्ट्रीम एंड है. यू अंडरस्टैंड? तो आपका अपस्ट्रीम एंड के ऊपर यू आर हैविंग ए शार्प कॉर्नर. यू अंडरस्टैंड? तो वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस. सो यू कैन से ये जो थिन पूरी की पूरी जो शीट है, इसको हम क्या बोलते हैं? नैप. जो पूरा को पूरा जो पानी का, so this is the upper portion of the nap, you can say, and this is the lower portion of the nap, right? तो जो आपका लोअर एंड होगा नैप का, जहां से देखिए, तो पानी जब इससे कॉर्नर से टकराएगा, what happens? So lower, you can say, lower portion of the nap at the upstream end, that will slightly raised like this, and then it will fall down and it will move along the crust. You understand? Move along the surface of the crust. लेकिन जहां से जब ये slightly raise होगा, what happens? The flow pattern will develop here. Sorry, इसका जो रेस होगा, एयर पॉकेट विल डेवलप हियर. और जो एयर पॉकेट डेवलप होंगी, और जब पानी इधर से इधर डाउन करेगा, एंड इट विल मूव फ्रॉम, फिर आगे मूव करेगा, तो जो एयर होगी, दैट विल बी कैरिड बाय द वाटर टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड. तो एयर जो है पानी के साथ डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर क्या करेगा, एयर को कैरी करेगा. ये यू अंडरस्टैंड? सो देयर विल बी द ड्रॉप इन प्रेशर. यू अंडरस्टैंड? सो देयर विल द, तो ये पॉइंट आपको क्लियर आया, समझ आया? अब देखिए दोबारा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट. शार्प कॉर्नर एट द अपस्ट्रीम एंड के बारे में आई एम डिस्कसिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको समझना है. वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, राइट? दिस इज योर नैप ऑफ द वाटर विच इज फ्लोइंग. जब पानी फ्लो करते करते इस कॉर्नर से, जो आपका लोअर पोर्शन है नैप का, जब इसके ऊपर शार्प कॉर्नर के ऊपर दैट विल स्ट्राइक, सो व्हाट हैपेंस, देयर विल बी द, ये जो आपका पानी का लोअर नैप है, दैट विल बी स्लाइटली रेज्ड. जहां पे क्या होगा, स्लाइटली रेज्ड, और उसके बाद इट विल लाइक दिस, ये नीचे फिर आ जाएगा. So during this period, you can say, due to this, the air pocket develops here. You understand? Air pocket develop करेगा, और जब पानी का फ्लो जहां से फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये इस तरीके से फ्लो करेगा, तो एयर कैरिड बाय द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, जो एयर जो होगी, वो पानी का जो स्ट्रीम है,
उसके साथ में वो कैरी करेगा इस साइड के, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, देयर विल बी द रिडक्शन इन द प्रेशर, यू अंडरस्टैंड, देयर विल बी द रिडक्शन इन द प्रेशर। जो आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। जहां पे जो प्रेशर है और अगर इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। व्हाई, बिकॉज द जो एयर जहां से जो एयर पॉकेट बनेगा, जहां से एयर जो डेवलप होगी, वो एयर जो है पानी के साथ कैरी कर जाएगी और आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप करेगा, देयर बाई रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ प्रेशर इन दिस पोर्शन, राइट। तो इस पोर्शन में क्या होगा, ये जो आपका पोर्शन है, दिस पोर्शन, तो जहां पे आपका प्रेशर ड्रॉप करेगा, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज क्लियर टू यू। तो जहां पे आपका पोर्शन डेवलप करेगा, तो जहां पे आपका क्या होगा, प्रेशर आपका इस पोर्शन के ऊपर ड्रॉप करेगा। जब आपका प्रेशर ड्रॉप करेगा तो एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहां पे जो चांसेस होंगे इसके ऊपर कैविटेशन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, यू अंडरस्टैंड। सो ड्यू टू दिस यू कैन से देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटेशन, यू अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होगा, कैविटेशन का फॉर्मेशन होगा और हमारा वेयर जो है उसको दैट विल बी हार्मफुल फॉर दैट। तो जब कैविटेशन फॉर्म होगी तो उसका जो वेयर है, तो वेयर आपका हार्मफुल है फॉर दिस, एंड दैट द वेयर मे बी डैमेज्ड, यू अंडरस्टैंड। तो वेयर आपका डैमेज हो सकता है, यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप कहते हैं कि इसको लिखना है तो उसको मैं लिखा लेता हूं। तो इसको अगर ये दो पॉइंट जो मैंने बोला था इसको आप लिख लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि ए स्मॉल एयर पॉकेट, देखिए ए स्मॉल एयर पॉकेट इज developed, a small air pocket is developed at the sharp corner of the upstream end, right? A small air pocket is developed ऐसे करके लिख लो, a small air pocket is on the crust of the beer, लिख लो, a small air pocket is developed on the crust of the beer at the close to the, at the लिखो, close to the sharp corner, at the sharp corner, you understand? So small air pocket is built well, right? तो अब देखिए how this small air pocket will be, you understand that ये स्मॉल एयर पॉकेट कैसे डेवलप होगा, दिस इज, ये कैसे डेवलप होगा, दिस इज ड्यू टू द slightly, this is due to the slightly
This is due to the slightly raised. This is due to the slightly raised of the lower nappy. This is due to the slightly this is due to the, ऐसे करके लिख लो, this is due to the lower nap being slightly raised. कहाँ पे? At the sharp corner. At the sharp corner, and then at the sharp corner, and then it drops down and flow, and then it drops. क्या करेगा जी? ड्रॉप करेगा. It drops down and flow over the surface of the crust of the beer. Crust of, लिख लीजिए. ये पॉइंट क्लियर हुआ? यू अंडरस्टैंड? अच्छा, थर्ड इसमें क्या होगा? तो जो एयर पॉकेट जो डेवलप होगा, जहां से क्या होगा? एयर आपका अंदर आएगा. यू अंडरस्टैंड? तो एयर आपका अंदर आएगा वहां से. तो फ्रॉम द एयर पॉकेट्स, तो इसमें ऐसे लिख लो, फ्रॉम द एयर पॉकेट so developed, the air being carried away, the air being carried by the stream of the water, the air being carried away by the flowing stream of the water, carried away by the flowing stream of water, right? Thus, thereby dropping the surface of the water, right? Thus thereby, थर्ड आ गया. तो ये 3 पॉइंट लिखे, इसमें लिखते हैं 10, इसको रेड पेन से लिखते हैं 10, thereby, इससे क्या होगा? जो प्रेशर आपका होगा वो ड्रॉप करेगा. यू अंडरस्टैंड? सो दस thereby resulting drop in pressure, right? Thus thereby resulting drop in pressure over the crest of the bear. Thus thereby resulting drop in pressure, right, over the
जो आपका पोर्शन होगा इन दिस पोर्शन ओवर द क्रस्ट ऑफ द बियर, तो आपका प्रेशर ड्रॉप करेगा। यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़ लेते हैं इकट्ठे। First point is here in the broad crested weir, a small air pocket is developed on the crest of the weir close to the sharp corner at the upstream end। तो पहला पॉइंट ये है कि जहां पे एक एयर पॉकेट आपका स्मॉल एयर पॉकेट डेवलप करेगा इस पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, when the water will flow like this and जो लोअर नैप होगा इसका, जब जहां से ये स्ट्राइक करेगा तो ये स्लाइटली लोअर नैप का जो पोर्शन होगा, लोअर पोर्शन ऑफ द नैप, वो स्लाइटली क्या होगा, रेज करेगा यहां से। तो स्लाइटली रेज करने के बाद फिर ये डाउनवर्ड इसके साथ आ जाएगा एंड देन इट विल फ्लो। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपका ये जो पॉइंट था, ये जब स्लाइटली इसने रेंज किया तो वहां पे क्या हुआ, एयर पॉकेट डेवलप हुआ, जिससे वहां पे हवा जो है, एयर दैट विल बी एंटर हुआ। यू अंडरस्टैंड? तो ए स्मॉल एयर पॉकेट इज डेवलप्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ द वेयर क्लोज टू द शार्प कॉर्नर। तो जो अपस्ट्रीम का शार्प कॉर्नर था, तो जहां पे आपका क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, देयर इज ए एयर डेवलप। सो ये कैसे डेवलप हुआ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज ड्यू टू द लोअर नैपी बीइंग स्लाइटली रेज्ड at the sharp corner and then it drops down and flow over the surface of the crust of the weir। You understand? Lower nappy जो था that slightly raised किया, जब पानी का फ्लो इसके साथ कॉर्नर से टकराया तो लोअर नैप जो था स्लाइटली रेज हुआ और वहां पे आपका एयर पॉकेट डेवलप हुआ, और उसके बाद ये दोबारा इट हैज कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, डाउन हुआ, और उसके बाद देन इट विल फ्लो लाइक दिस। सो जो आपका एयर पॉकेट डेवलप हुआ, वहां से क्या हुआ कि जो हवा थी दैट कम इनसाइड द एयर एंड दैट एयर बीइंग कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर। तो जो पानी के साथ हवा जो थी दैट विल बी कैरिड बाय द फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर, दस देयर बाई रिजल्टिंग इन ड्रॉप इन प्रेशर। तो क्या हुआ, उससे आपका प्रेशर जो है यहां पे ड्रॉप हुआ। अब प्रेशर ड्रॉप होगा तो व्हाट हैपेंस, कैविटेशन मे बी फॉर्म्ड, कैविटेशन मे बी डेवलप, और कैविटेशन अगर डेवलप होती है तो आपके बियर के चांसेस होते हैं कि वो बियर को डैमेज करेगी। यू अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया, इस केस में आपका कैविटेशन फॉर्म होगा, जो आपकी शार्प कॉर्नर जो क्रस्टेड वेयर था, शार्प कॉर्नर क्रस्टेड वेयर जो था, उसमें शार्प कॉर्नर ब्रॉड क्रस्टेड वेयर, उसमें कैविटेशन, जो चांसेस ऑफ कैविटेशन दैट मे बी देयर। यू अंडरस्टैंड? एंड दैट मे डैमेज द वेयर। यू अंडरस्टैंड? अब आ जाइए राउंड कॉर्नर के केस। अब देखिए राउंड कॉर्नर के केस में देयर इज नॉट लाइक दिस, इसका कॉर्नर राउंड है, ये जो लोअर नैपी है आपका, जो सीधा इस तरीके से इसके ऊपर से फ्लो कर जाएगा, इट विल नॉट स्ट्राइक हियर, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द एयर पॉकेट। इस केस में आप देखिए कि जहां से कोई आपका एयर फॉर्मेशन, एयर पॉकेट जो है डेवलप नहीं होगा, बिकॉज इस कॉर्नर इज राउंड। जब एयर पॉकेट डेवलप नहीं होगा तो जहां पे क्या होगा, एयर नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड? एयर नहीं आएगी ड्यू टू दिस, राइट? तो क्या होगा, जहां पे जो कैविटेशन है, जो कैविटेशन का प्रोसेस है, वो जहां पे कैविटेशन फॉर्म नहीं होगी और बियर जो आपकी है वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी, डैमेज नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रॉडली वी यूज द वेयर, जो हम वेयर को यूज करते हैं, ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर को फॉर मेयरिंग द डिस्चार्ज इन केस ऑफ चैनल फ्लो और राइट, तो उस केस में जो ब्रॉडली हम बियर हम यूज करते हैं, वो हम यूज कौन सी करते हैं, राउंड कॉर्नर एट द अपस्ट्रीम एंड। जो हमारी वियर जो होती है राउंड कॉर्नर एट द अपस्ट्रीम एंड, एंड द रीजन इज कि जहां पे जो कैविटेशन के चांसेस हैं, जहां पे जो कैविटेशन है वो वहां पे कैविटेशन नहीं होगी, जो वियर के डैमेज के चांसेस हैं वो यू कैन से वो टोटल नेग्लेजिबल होंगे, बिकॉज देन देयर इज नो कैविटेशन, तो वियर के चांसेस डैमेज के कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे। बट इन केस ऑफ द शार्प कॉर्नर,
शार्प कॉर्नर जो अगर बेयर का जहां पे अगर हमें शार्प कॉर्नर दिया है तो उसका जो हमें सबसे बड़ा हार्म है, नुकसान है, व्हाट इज दैट, जहां से हमारा एयर पॉकेट डेवलप होगा जिससे हवा अंदर आएगी और पानी जो फ्लो करेगा वो हवा को अपने साथ लेके फ्लो करेगा। तो व्हाट हैपन्स, जो आपका प्रेशर होगा वो ड्रॉप करेगा, और जब प्रेशर आपका ड्रॉप करेगा तो कैविटेशन के चांसेस जो हैं उसमें ज़्यादा होंगे। यू अंडरस्टैंड। तो ये था नैरो क्रेस्टेड वियर, जो मैंने दो टाइप्स आपको बताई। व्हाट इज योर्स दिस यू कैन से ब्रॉड क्रेस्टेड वियर का एक था आपका शार्प कॉर्नर एट द अपस्ट्रीम एंड and the round corner at the upstream end. These are the two types of the broad crested weir. So this is the difference. रेस्ट जो विड्थ है, बाकी पैरामीटर्स हैं, दे आर ऑल सेम। सिर्फ आप इसका कंस्ट्रक्शन में आए, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण क्या हुआ कि इसमें कैविटेशन के चांसेस, जो राउंड कॉर्नर है उसमें कैविटेशन के चांसेस ना के बराबर हैं, और जो आपका ये शार्प कॉर्नर है जहां पे आपकी कैविटेशन होगी, कैविटेशन का मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट फॉर्म्स, किस तरीके से आपका एयर पॉकेट डेवलप होगा और किस तरीके से आपका प्रेशर रिड्यूस होगा, और कैविटेशन के चांसेस क्या है, कैविटेशन इसमें जो आपकी शार्प कॉर्नर अपस्ट्रीम आपका बियर है वहाँ पे आपके कैविटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और बियर आपकी डैमेज होगी। तो ये आ गई डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ दिस। अब इसमें आ जाइए, इसके फ्लो पैटर्न के बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये फ्लो पैटर्न एज शोन इन द फिगर जो मैंने आपको बताया है, अच्छा अब आइए इसका फ्लो पैटर्न के बारे में। तो जैसे आपने देखा कि ड्यू टू दिस ये जो आपका फ्लो पैटर्न होगा, तो अपस्ट्रीम एंड के ऊपर इसका जो हेड है दैट इज एच, और जो जहाँ पे जो फ्लो पैटर्न के हिसाब से जो मिड ऑफ द वियर है इसका हेड ये क्या है, दैट इज द स्मॉल एच। यू अंडरस्टैंड। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, as the water flows, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, as the water flows over it, राइट। तो क्या होगा, the water surface, right, as the water flows over it, the water surface क्या होगा यहाँ पे, drops from H, जहाँ पे अगर H था तो जहाँ पे क्या है, to H, right? You understand this? तो वाटर सरफेस आपका क्या होगा, ड्रॉप करेगा H से लेके H तक। तो H आप कह सकते हैं, H क्या है, टोटल हेड, ये जो आपका अपस्ट्रीम एंड के इधर थोड़ा सा इधर ले लीजिए आप, कर्वेचर के बाहर से हम टोटल H को कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो टोटल हेड एट द नियर द अपस्ट्रीम एंड कर सकते हैं, H is a total head just near the upstream, just near the upstream end from the
crest of weir। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हेड जो है, क्योंकि जहां पे आप देखिए कर्वेचर है तो स्लाइटली अपस्ट्रीम एंड से अवे जो इसका सही हेड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां कर्वेचर आ गया, जहां पे अगर हम हेड को मेजर करेंगे तो आपकी हेड की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो जहां पे देखिए, जहां पे जो वाटर का फ्लो है ये पहले इस तरीके से जाएगा हॉरिजॉन्टल, उसके बाद देन इट विल मेक द कर्वेचर। तो ये मैंने लिखा टोटल हेड जस्ट नियर द अपस्ट्रीम एंड from the crest of the weir, right? From the और h क्या है, स्मॉल h क्या है, हेड ऑन द मिडल ऑफ द crest, राइट? h क्या है, h आपका हो गया head on the mid of the crust, राइट? जब देखिए ये फ्लो जो है, पानी का फ्लो है, इसकी हाइट जो है मिड ऑफ द क्रस्ट, ये मैंने लिया स्मॉल h से, और जो इसका फ्लो है हाइट इसकी, जहां से मैंने क्रस्ट से इसकी हाइट जो है वो कितनी लिया है, h। तो ये आपका हो गया हेड h, और ये आपका क्रस्ट ऑफ द वेयर के ऊपर स्मॉल h। तो यू कैन से देयर आर टू हेड्स हियर। सो इन दिस केस हमें जहां पे दो हेड हैं, वन हेड इज द हेड h जो कि अपस्ट्रीम साइड से इस साइड के ऊपर है, एंड द सेकंड वन दैट इज द वैल्यू ऑफ द हेड ऑन द mid of the crust. Now you see here, जहां पे देखिए there is a reduction in area, जहां पे पानी का क्या होगा, ड्रॉप करेगा। अगर इसका हेड जहां पे डेप्थ इतना है, इसका डेप्थ इतना है, तो इसका डेप्थ क्या है, कम है मिड ऑफ द crust। सो यू कैन से देयर इज ड्रॉप इन द एरिया क्रॉस, जो इसका एरिया होगा उसमें क्या होगा, ड्रॉप होगा। जब एरिया इसका ड्रॉप करेगा तो व्हाट हैपन्स, that the velocity जो इसके ऊपर फ्लो की होगी that will continuously increasing, you understand? एरिया कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि डिस्चार्ज तो हमारा सेम है, you understand? डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट है जो पीछे से आ रहा है, बट एरिया आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो वेलोसिटी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, you understand? नाउ ये आपका हो गया इस तरीके से। अब क्या कीजिए, जहां पे सेक्शन ले लीजिए आप, सपोज एक सेक्शन जहां पे ले लीजिए, जहां पे जो एक सेक्शन 1 एंड और वन सेक्शन आप इसकी मिड के ऊपर ले लीजिए, सेक्शन 2 राइट? सो देयर आर द टू सेक्शन 1 एंड 2 हियर। अब वी हैव टू कैलकुलेट the discharge. How we can find the discharge by using this broad crested weir? What is the formula? How we can do it? तो आप देखिए इसमें मैंने I have taken the two section. One section is at this जहाँ पे आपका total head h है. Second section where mid of the, you can say mid of the crest of the weir, जहाँ पे आपका head जो है वो small h है, right? So we have assumed that the flow is uniform here, the velocity is v। फ्लो क्या है आपका, यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी क्या है, b है, एंड ba दिस इज द अप्रोच वेलोसिटी। एक केस में हम अप्रोच वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करेंगे और एक केस में अनदर केस में अप्रोच वेलोसिटी को हम कंसिडर करेंगे, यू अंडरस्टैंड? तो पहले हम अप्रोच वेलोसिटी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, यू अंडरस्टैंड दिस? So I have taken the two sections. One section is at the upstream side. इसके जो कॉर्नर है, इसके अपस्ट्रीम के जहां पे आपका हेड हमें क्या मिला, h। एक सेक्शन मैंने वहां पे लिया जहां पे टोटल हेड आपका कितना है, h है। एंड द सेकेंड सेक्शन आई हैव टेकन ऑन द मिड ऑफ द crest where the head is small h. Now we have applied the Bernoulli's theorem here. तो Bernoulli's equations आप अप्लाई करें Bernoulli's equation between section 1
N22. So apply Bernoulli's equation between section 1 and 2, right? So Bernoulli's equation को आप अप्लाई करें हम, राइट? तो क्या होगा? व्हाट इज द प्रेशर हेड? ये आपका टोटल हेड है H यहां पे, तो प्रेशर हेड या टोटल हेड आपका हो गया H, राइट? वी हैव नेग्लेक्टेड द अप्रोच वेलोसिटी हियर, जहां पे हमने अप्रोच वेलोसिटी को नेग्लेक्ट किया है, तो जो काइनेटिक हेड होगा b²/2g, जो आपका काइनेटिक हेड क्या होता है b²/2g, तो अप्रोच वेलोसिटी वी हैव नेग्लेक्टेड, दिस इज प्लस 0, राइट? दिस इज 0 प्लस ये जेड जो है जहां से लेके जहां तक कितना है जेड, राइट? जहां से लेके जहां तक आपका जेड है, तो जेड भी आप 0 ले लीजिए, जो जे जेड और जे जेड दोनों का सेम है, तो जेड भी इस केस में क्या है, जेड आपका 0, राइट? दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द हेड? प्रेशर हेड क्या होगा, स्मॉल h प्लस this you can say this is the average velocity. We have taken the average velocity as uniform velocity, तो v आपका आ गया b²/2g, राइट? और z फिर आपका 0 आ गया, यू अंडरस्टैंड? z आपका 0, therefore h is equal to h b²/2g. That implies b²/2g को एक तरफ रख लो, b²/2g h minus h, right? or b², this is equal to 2g h minus h, and that implies therefore b is equal to under root of 2g h minus h, right? तो ये b की वैल्यू जो आपकी वेलोसिटी थी, दैट वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड. यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो मैंने Bernoulli's equation I applied here, you understand this? I have taken the two sections, one section is there and the other section is at this point. इस section के ऊपर जो आपका pressure head है, that is I have taken capital H, and at the mid of this crest of the weir, the head is small h. You understand? So जो आपकी velocity है, we have just ये आपका वी आर नॉट कंसिडरिंग द अप्रोच वेलोसिटी हियर, तो आपकी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर एट द अपस्ट्रीम एंड इस वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर द वेलोसिटी यू कैन से दैट इज 0, और उसके बाद जब ये फ्लो जब रिडक्शन इन एरिया होगा तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये लगा h आपका आ गया प्रेशर हेड, जो वेलोसिटी हेड है 0 है, z आपका 0 है, एंड दिस इज इक्वल टू सेक्शन 2 के ऊपर जो आपका हेड था, that is small h, and velocity head because it is moving with the velocity v, and this is b²/2g plus 0. और जहां से हमें क्या किया, velocity की वैल्यू भी have calculated, right? Now the a अब Q क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस यू नो, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. तो एरिया क्या होगा, L is the length of the crest and H is the height
h क्या होगी, इसका हाइट होगा। तो डिस्चार्ज तो जहां से देखेंगे ना, L जो आपका हो गया लेंथ ऑफ द क्रस्ट, h इज द हाइट, तो एरिया आपका आएगा L इंटू स्मॉल h इंटू रूट 2g h minus h, राइट। दिस इज वेयर, आप जहां पे लिखिए वेयर L क्या है, लेंथ ऑफ, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द क्रस्ट। सो here we have not considered the losses here। हमने ये जो इक्वेशन आपका, ये आपका जो इक्वेशन था जो हमने ड्राइव किया, इन दिस केस वी हैव नॉट कंसिडर्ड द लॉसेस, बट एक्चुअल में लॉसेस होंगे, राइट। सो एक्चुअल में लॉसेस होंगे, तो जो हमें डिस्चार्ज होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज, ये आपका जो आपका डिस्चार्ज था, दैट इज योर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यू कैन से दिस इज योर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। जो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज होगा जब हम लॉसेस को कंसिडर करेंगे, तो सो दिस इज इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, राइट। दिस इज इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, आर यू कैन से सेम आर सी डी इंटू एल इंटू एच इंटू 2g h माइनस h। तो जे आपका आया एक्चुअल डिस्चार्ज, दिस इज इक्वल टू actual discharge, right? CD is the coefficient of discharge and this is equal to तो इन जनरल अगर मैं CD की वैल्यू लूं, इन जनरल CD की जो वैल्यू है वो हम, CD की जो वैल्यू होगी ये आप लेंगे 0.8521, ये याद रखना है, जो CD की वैल्यू है 0.8521। अब देखिए दिस वी हैव कैलकुलेटेड, it means that if you want to find the actual discharge in case of this broad crested wear, we need to find the value, two values, that is, we need to find or we need to measure the two values, that is first total head H and that small head H, you understand। हमें ये दो values जो है calculate करना पड़ेंगी, so then only we can calculate द डिस्चार्ज हियर। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, यू सपोज, राइट। तो ये आपका डिस्चार्ज का इक्वेशन आया, यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए मैक्सिमम डिस्चार्ज, हमें किसी हेड के ऊपर मैक्सिमम डिस्चार्ज को कैसे फाइंड आउट करना है। जहां से ठीक है। अब ब्रॉड क्रस्टेड वेयर का एक और प्रॉपर्टी है, देयर इज वन मोर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दैट सो इन केस ऑफ broad crested wear,
तो ब्रॉड क्रस्टेड के वेयर में द फ्लो एडजस्ट इटसेल्फ, यू अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ फ्लो एडजस्टेड इटसेल्फ, इस केस में क्या करेगा, द फ्लो जो आपका होगा, द फ्लो एडजस्टेड, द फ्लो एडजस्टेड itself to have the maximum discharge, to have maximum discharge at the available head. At the available head. So it is having one more significance here. Understand कि जहां पे जो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर है, जहां पे जो फ्लो पैटर्न है, इसका जो पैटर्न इस तरीके से होगा that the flow will adjust itself to find the maximum discharge एट द गिवन अवेलेबल हेड। कोई भी हमारा हेड हमारे पास अवेलेबल है एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन दैट, तो फ्लो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा इस तरीके से कि वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब देखिए जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है, राइट, सो टू अब हमें किस कंडीशन के ऊपर आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, तो आप कह सकते हैं द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज एट द अवेलेबल हेड, the condition for the maximum discharge इस तरीके से लिख लो, इसको मिटा दो। ऐसे लिख लो, द कंडीशन फॉर द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज may be obtained at constant head h, at the constant head h. You understand? So condition for the maximum discharge for the constant head h, वो क्या है आपका डी क्यू अपॉन डी एच, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। डी क्यू अपॉन डी एच, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द क्यू, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो जहाँ से हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, तो आप क्या है देखिए, व्हाट इज योर डी क्यू, तो डी क्यू की वैल्यू लिखिए आप, ये आपका आ गया और डी अपॉन डी एच ऑफ क्यू क्या था, क्या वो था सी डी इंटू एल इंटू एच,
हाँ जी, क्या हो गया, बन गया? बना रहा हूँ अभी शुरू किया क्या? ना, काफ़ी देर, घंटा हो गया बनाते। तो हो गया कंप्लीट? तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ये आपका सी डी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, √2u भी कांस्टेंट है। इसको बाहर निकालिए। ये h एंड अंडर रूट ऑफ h माइनस एच, ये दो फंक्शन हो गया। u इंटू वी फार्मूला डिफ्रेंसिएशन के लिए, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कीजिए एंड यू विल गेट दिस वन। तो ये आपका आएगा अंडर रूट h माइनस h माइनस 1/2, दिस इज 1/2 रूट h माइनस h, राइट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी h की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ h, सो इसको सॉल्व कर ले। देयरफॉर जहाँ पे लिख लीजिए, देयरफॉर h जो स्मॉल होगा दिस इज इक्वल टू 2/3h, राइट। तो ये जो आपका हेड है यहाँ पे स्मॉल हेड, अगर इसकी वैल्यू 2/3 इंटू h आती है, यू अंडरस्टैंड, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल डेप्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डेप्थ भी इसको बोलते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, जहां पे ये सारी चीजें कांस्टेंट है एंड जे आपका एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जे है, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू h। u इंटू वी का फार्मूला लगाइए और उसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो जाए आपको याद रखना है कि जो क्रिटिकल डेप्थ है, यू कैन से दैट दैट हेड ऑन द मिड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द वेयर, जो इसका हेड है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जो आपका टोटल हेड है उसका 2/3 पार्ट, यू अंडरस्टैंड। सो 2/3 इंटू h, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल डेप्थ। जिस डेप्थ के ऊपर आपका फ्लो जो है वो क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो h इज कॉल्ड दिस h, तो ये आपका h आ गया 2/3h, and this is the condition at this depth, if the value of h, this is equal to 2/3 into h, so at this depth you can say, so this is this head or depth, you can say this head, और जो depth जो होगी over the mid of the crust of the weir, over the mid of crust of weir, right, this head, a depth over the mid of the crust of the weir, so this is called the critical depth. This is called the critical, इसको हम बोलते हैं, this is called the critical depth, and at the value of this critical depth, so you can say at critical depth the discharge over the crust of the weir is maximum. So the discharge over broad crust weir is maximum. The discharge over crust of weir is maximum. You understand? तो ये आपका आ गया। तो इस केस में जो आपकी Q की वैल्यू होगी, तो इस केस में आपका जो Q होगा, Q मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। अगर हम
क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपको पता है जो आपका Q था वो क्या है, जो आपका Q है वो क्या था, व्हाट इज योर Q हियर, तो Q आपका था CD L इंटू H इंटू रूट 2G H माइनस H अंडर रूट, राइट, 2G H माइनस H अंडर रूट, दिस इज द जी आपका था, राइट। तो जो आप इसको सीधा कर लीजिए, एक में कर लीजिए, राइट। और अगर मैं कहूँ कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये आपका इक्वेशन है और मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे उस केस में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज हियर, तो H की जगह 2/3H जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सो सब्स्टिट्यूट H की जगह, देयरफॉर Q मैक्सिमम क्या होगा, CD कांस्टेंट है, L H की जगह 2/3H इंटू रूट 2G H माइनस 2/3H, राइट। तो जी आपने CD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, राइट। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी यहाँ पे Q मैक्सिमम की, अगर हम क्योंकि बिकॉज वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ, फॉर Q मैक्सिमम ये आपको इक्वेशन याद रखनी है 1.70 इंटू L इंटू H 3/2, राइट, 1.70 CD इंटू L इंटू CD भी लिख लीजिए, 1.70 CD to L into H 3/2, right? So this is this equation we can use for the maximum discharge, right? तो maximum discharge के लिए हम ये equation इस्तेमाल कर सकते हैं, you understand? तो ये फर्स्ट इक्वेशन आया था जब हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसिडर नहीं किया था, राइट। तो सेकंड ये है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसिडर करते हैं, इफ वी विल कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेकंड केस में इफ वी विल कंसिडर we will consider the velocity of, if we will consider the velocity of approach, right, तो अब इक्वेशन आपकी जो होगी वो क्या होगी, Q इज इक्वल टू CD टू L into H into H1 3/2, right? CD into L into H गलत हो गया, Q इज इक्वल टू 1.70 CD into L into H1 3/2 and H1 this is equal to H plus HA. H1 किसके बराबर होता है, so H1 ये हमने था H1 this is equal to H plus HA और HA क्या होगा, BA square by 2U. This is the velocity head we are taking here because we are considering the approach velocity here. तो HA की जगह आपका BA²/2G, फार्मूला सेम है, only we have used H की जगह we have used the H1 here. You understand?
So this is about this broad crested weir. This is the complete lecture. ये broad crested weir के बारे में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कुछ इंपेरिकल फार्मूलाज आपको दिए जाएंगे उसमें, और उसके बाद हम परसेंटेज एरर जो है इसका निकालेंगे कि अगर हमारा हेड में कोई एरर आता है तो उस वक्त हमारी जो डिस्चार्ज है उसमें कितना एरर हमें मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो इसके बाद वही हम लेंगे। और बट एम्पिरिकल फार्मूलाज जैसे फ्रांसिस ने फार्मूला दिया था, तो एक्चुअली नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे हैव मेड, वेरियस इन्वेस्टिगेशंस दे हैव मेड, बिकॉज जो हम डिस्चार्ज है वो मोस्टली वी यूज़ कौन सी हम करते हैं, रेक्टेंगुलर वियर, वी यूज़ द रेक्टेंगुलर वियर। सो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैज बीन फाइंड आउट एंड नंबर ऑफ यू कैन से एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन मेड एंड देन देयर इज़ ए रिजल्ट। उसमें रिजल्ट में उन्होंने कुछ इंपेरिकल फार्मूलेस दिए थे, जैसे कि फ्रांसिस ने फर्स्ट दिया था। तो वो इंपेरिकल फार्मूलेस जो 2-3 होंगे वो कल आपको थोड़ा सा बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद जो मेन टॉपिक है दैट इज़ परसेंटेज एरर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज आपका ब्रॉड क्रस्टेड वेयर, आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। और जो अगला इसका पार्ट होगा 5th लेक्चर, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।